Have you ever noticed sometimes you have so many options when it comes to buying something? जैसे कि कपड़े खरीदने हैं, ज़ारा से खरीदूँ, H&M से खरीदूँ, वेस्ट साइड से बाय करूँ या ज़ूडियो से खरीदूँ. On the other hand, sometimes you have no choice at all. ट्रेन से ट्रैवल करना है कहीं तो आपके पास क्या ऑप्शन है? इंडियन रेलवेज. दिस इज नॉट रैंडम, दिस इज रियल लाइफ इकोनॉमिक्स. दिस वीडियो आई बी कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट स्ट्रक्चर्स, वेयर आई बी एक्सप्लेनिंग यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स लाइक ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, perfect competition in the most simple possible way with real life examples. So let's first start with the most easiest type of competition in the market, that is perfect competition. Let's take the example of a local सब्जी मंडी market. Imagine कि आप मार्केट जा रहे हो सब्जी खरीदने के लिए और आपको चाहिए 1 किलो प्याज. अब आपको पता है कि 1 किलो प्याज आपको 26 रुपये से 30 रुपये के बीच में मिलेगी. जब आप मार्केट जाते हो तो एक सब्जी वाला आपको उसके लिए 40 रुपीज़ चार्ज करता है. आप बोलते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज सब्जी तो 26 से 30 रुपये के बीच में मिल रही है, एंड यू क्विकली मूव टू अनदर सेलर. वो आपको 26 रुपये में 1 किलो प्याज दे देता है. What is this called? This is called perfect competition. Now, why is it called perfect competition? It is known as perfect competition because there are too many sellers and too many buyers like you in the market who are very much aware of the prices that are going on. अगर एक भी सेलर उस मार्केट में कोशिश करेगा कि वो थोड़ा सा भी ज़्यादा चार्ज करे अपने प्रोडक्ट के लिए तो वो मार्केट का शेयर लूज़ कर देगा बिकॉज all the buyers know that there are so many sellers out there and they are completely aware about the price going on in the market of the different types of vegetables. This is the most competitive type of market structure and real life में इसके बहुत ही limited examples हैं. So perfect competition के 3 main characteristics होते हैं. There are a large number of buyers and large number of sellers. All of them are selling a homogeneous product, which means same type of product. Third, there is no barrier to entry and exit in such a market. कोई भी seller enter कर सकता है same product को बेचने के लिए और कभी भी exit कर सकता है. Now let's move to different types of imperfect competition. Imperfect competition का सबसे easy example लेते हैं जिसे हम monopoly बोलते हैं. Monopoly का मतलब है only one. To understand monopoly, let's again take the example of Indian Railways. You want to book a railway ticket to travel somewhere. You have no other option but to book a train ticket from the Indian Railways to travel somewhere. So monopoly में एक single seller होता है और बहुत सारे buyers होते हैं. उस seller ने पूरा market capture कर रखा होता है. So there is complete control over the price and market. Because there is only one single seller, there is no competition. Another feature of monopoly competition is that there is strong barrier to entry due to government control and ownership in most of the cases, or maybe because of other legal rights like patents. In other words, monopoly is a situation when there is only one player in the market and there is full control. Let us take up another example of a market competition जिसमें आपके पास बहुत सारे options होते हैं बट हर ऑप्शन आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा होता है. जैसे कि ज़ारा, H&M, वेस्ट साइड एंड ज़ूडियो. एवरी ब्रांड इज सेलिंग क्लोथ्स बट किसी तरीके का प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है जिससे उनका जो ब्रांड है वो थोड़ा सा यूनिक फील होता है. Zara and H&M both are selling the same type of dresses, jeans and shirts, yet the designs somehow feel different and unique. थोड़ा सा डिफरेंस होगा प्रोडक्ट्स में और ब्रांड्स के डिज़ाइनिंग स्टाइल्स में, बट कुछ आप में से होंगे जो विजिट करना चाहेंगे ज़ारा की, कुछ होंगे जो आप में से H&M विजिट करना चाहेंगे, एंड देन देयर विल बी अदर्स अमंग यू हु वुड लाइक टू विजिट वेस्ट साइड और ज़ूडियो. इस टाइप के कंपटीशन को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. The main feature of this type of market is that there are a large number of buyers and sellers in the market. The product is somehow identical but there is slight product differentiation. इस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस के थ्रू कंपनीज या ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करती हैं. Somehow the products are identical but there are slight differences which they use in their advertising and promotion strategies. So there is competition but थोड़ी सी uniqueness भी है, but because the products are identical there is easy entry and exit of firms through this market. अब डिस्कस करते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर जिसको हम ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं. आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हैं तो आपके पास 5-6 प्रेफरेंसेस के अलावा और कुछ भी नहीं होता, जैसे कि लिम्का, कोको कोला, थम्स अप. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन में आते हैं. ओलिगोपोली मार्केट में 4 to 5 फर्म्स होते हैं जो सिमिलर तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, सब कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहे हैं थोड़े से वेरिएशन के साथ. ऐसा इसलिए है बिकॉज कोको कोला एंड पेप्सिको आर बिग जायंट्स हु आर डोमिनेटिंग द एंटायर मार्केट. इस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में इंटरडिपेंडेंस बहुत हाई होती है. फॉर एग्जांपल कोको कोला जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स लिम्का एंड थम्स अप पे एक बहुत क्लोज वॉच रखता है कि वो अपने प्राइसेस को क्या रख रहे हैं. अगर लिम्का या थम्स अप में से किसी ने भी अपना प्राइस बढ़ाया तो कोको कोला भी उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा. या फिर अगर थम्स अप या लिम्का ने अपनी क्वांटिटी को रेज करने की कोशिश कर मार्केट में ज्यादा शेयर कैप्चर करने के लिए तो कोको कोला भी वही क्वांटिटी की स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा. So firms are highly interdependent in such type of market and there is strong barrier to entry because Coca-Cola, Limca and Thums Up and other similar cold drink brands have strong legal
control over the market through patents, copyrights, and control over resources like raw materials. शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉस्ट इतना हाई होता है, उतना फ्लक्चुएटिंग होता है, और कंज्यूमर्स की जो लॉयल्टी होती है वो इतनी हाई होती है. रीजंस लाइक दीज मेक्स इट वेरी डिफरेंट फॉर अदर ब्रांड्स टू कम इनटू द मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट. एक और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है मोनोप्सोनी. मोनोप्सोनी जो है वो बेसिकली मोनोपोली का ऑपोजिट होता है. मोनोपोली में जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सिंगल सेलर होता है एंड देयर आर अ नंबर ऑफ बायर्स लाइक द इंडियन रेलवेज हु इज अ सिंगल सेलर एंड देयर आर मेनी बायर्स लाइक अस हु वांट टू ट्रैवल थ्रू द ट्रेन. मोनोप्सोनी में इट्स द ऑपोजिट, देयर इज अ सिंगल बायर व्हाइल देयर आर मेनी सेलर्स. इसका एग्जाम्पल इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए एक मार्केट है जिसमें बहुत सारी फर्म्स रेलवे इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं. सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन दैट मार्केट, बट उसका बायर इंडिया में एक ही है जो कि है इंडियन रेलवेज. So that type of market is known as monopsony because there is only one buyer and there are ample number of sellers in the market who are selling railway equipments to the single buyer, that is Indian Railways. सो आपने देखा कितना इजी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स को समझना. दिस टाइप ऑफ मार्केट्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन आवर डे टू डे लाइफ. आप कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में इन तरीके के मार्केट से डील करते हैं जब आप किसी तरीके का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो. इट्स जस्ट व्हेन यू नोटिस इट क्लोजली एंड ऑब्जर्व दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. सो इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सिंपल वे में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. ऑल द लिंक्स आर शेयर्ड इन माई यूट्यूब चैनल. ऑल द बेस्ट, बाय.